ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਸੁਖੇਜਾ ਟਿਊਸ਼ਨਸ। ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਸੁਖੇਜਾ ਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਨਟੀਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸੈੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਡੇਲੀ ਆਪਾਂ 10-15 ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬੈਠ ਜੂਗਾ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕਲਾਸਿਸ ਤੁਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਲਗਾਇਆ ਕਰੋ ਜੀ। ਆਪਣੀਆਂ 3 ਕਲਾਸਿਸ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਕਲਾਸ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੀਕੇ ਤੇ ਥਰਡ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸੈੱਟ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਕਰੀਏ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਸਟਾਰਟ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਟਾਰਟ। ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਕਰੋ ਟਰਾਈ ਕਰੋ। ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਫਿਲ ਇਨ ਦ ਬਲੈਂਕਸ ਵਿਦ ਦ ਮੋਸਟ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਵਰਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਸਟ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਵਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਲੈਂਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਦ ਜੱਜ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਡ ਦ ਯੰਗ ਵਿਟਨੈਸ ਫॉर ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਅਪ ਟੂ ਦ ਡੈਸ਼ ਕ੍ਰੋਸ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੱਜ ਨੇ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਯੰਗ ਵਿਟਨੈਸ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨੇ ਕ੍ਰੋਸ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ? ਟੈਰੇਬਲ, ਅਡੋਡੀਅਸ, ਗਰੂਲਿੰਗ, ਇਨਟੋਲਰੇਬਲ। ਕਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਜੀ? ਕਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਕਿਹੜਾ ਕ੍ਰੋਸ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੋਸ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਭਿਆਨਕ, ਔਖਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੁਖਦਾਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਟੋਲਰੇਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਟੈਰੇਬਲ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ? ਟੈਰੇਬਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਭਿਆਨਕ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਭਿਆਨਕ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਦੁਖਦਾਈ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਔਖਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਫਿਕਲਟ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਗਰੂਲਿੰਗ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ ਬੱਚਾ? ਗਰੂਲਿੰਗ ਆਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੁਖਦਾਈ ਉਹਨੇ ਕ੍ਰੋਸ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਉੱਭਰ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ? ਦੁਖਦਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਟੋਲਰੇਬਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਟੋਲਰੇਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੱਜ ਇਹ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਕਰੂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਦੁਖਦਾਈ, ਇਨਟੋਲਰੇਬਲ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ ਜੀ? ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਗਰੂਲਿੰਗ, GRUELLING। ਦੁਖਦਾਈ ਕ੍ਰੋਸ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਯੰਗ ਵਿਟਨੈਸ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲਿਏ ਅੱਗੇ। ਆਓ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ। ਦ ਸਿਟੀ ਵਾਜ਼ ਪਲੰਜਡ ਡੈਸ਼ ਡਾਰਕਨੈਸ ਡਿਊ ਟੂ ਸਡਨ ਪਾਵਰ ਫੇਲੀਅਰ। ਸਾਰੀ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਰਕਨੈਸ ਹੋ ਗਈ ਪਾਵਰ ਫੇਲੀਅਰ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੰਧੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਸਾਰੀ ਸਿਟੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਆਊਗਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ? ਦ ਸਿਟੀ ਵਾਜ਼ ਪਲੰਜਡ dash darkness due to sudden power failure. Plunged through darkness, plunged to darkness, plunged into darkness, plunged under darkness. ठीक है, ना पता चले तो तुसी सेंटेंस नू सारे दे जेडे ऑप्शंस हैं भर के देख लिया करो, जो सही लगे उन्होंने कर दिया करो मार्क। ठीक है, the city was plunged into darkness due to sudden power failure. क्लियर है? नेक्स्ट आओ जी। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਸਿਲੈਕਟ ਦ ਕਰੈਕਟ ਸੈਂਟੈਂਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਦੇਖਿਓ ਕਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਹੋਏਗਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਡਿਊਟੀ ਆਫ ਅ ਗੁੱਡ ਹੋਸਟ ਟੂ ਵੇਟ ਔਨ ਦ ਗੈਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੈਸਟ ਲਈ ਵੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਗੁੱਡ ਹੋਸਟ ਦੀ। ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਡਿਊਟੀ ਆਫ ਅ ਗੁੱਡ ਹੋਸਟ ਟੂ ਵੇਟ ਅਪ ਟੂ ਦ ਗੈਸਟ। ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਡਿਊਟੀ ਆਫ ਅ ਗੁੱਡ ਹੋਸਟ ਟੂ ਵੇਟ ਦ ਗੈਸਟ। ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਡਿਊਟੀ ਆਫ ਅ ਗੁੱਡ ਹੋਸਟ ਟੂ ਅਵੇਟ ਦ ਗੈਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਮਾਰਕ ਹੋਊਗਾ ਜੀ? ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਡਿਊਟੀ ਆਫ ਅ ਗੁੱਡ ਹੋਸਟ ਟੂ ਵੇਟ ਔਨ ਦ ਗੈਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੂ ਵੇਟ ਔਨ ਦ ਗੈਸਟ। ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਡਿਊਟੀ ਆਫ ਅ ਗੁੱਡ ਹੋਸਟ ਟੂ ਵੇਟ ਔਨ ਦ ਗੈਸਟ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਆਓ ਜੀ ਨੈਕਸਟ। ਹੈਸ ਸੇਮ ਮੀਨਿੰਗ ਵਰਡ, ਮਤਲਬ ਸੈਨੋਨੀਅਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਸੈਨੋਨੀਅਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੈਸਟਲੀ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੋਊਗਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਗੈਸਟਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਭਿਆਨਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਭਿਆਨਕ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਮੀਨਿੰਗ। ਅਪੈਲਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਭਿਆਨਕ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।
अनअर्थली का मतलब हुंदा है मतलब कोई भी अजीबो गरीब चीज़, ठीक है, कोई भी अजीबो गरीब चीज़, अजीबो गरीब चीज़ लिख लियो तुसी, ठीक है। उस तो बाद ठीक है ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब हो गया फिर गैसली भयानक, अपैलिंग का भी भयानक, ठीक है। जेड़ा सीरीयस है स्टूडेंट वो फैंटम ते स्पैक्ट्रल का मीनिंग खुद सर्च कर सकते हैं। क्लीयर है। जो सीरीयसली एग्जाम नू क्रैक करना चाहता है, जो वर्ड्स मैं दस दियाँ जिन्हों का मीनिंग मैं नहीं दसदी वो खुद तुसी डिक्शनरी दे विचों चैक कर सकते हो, ठीक है। नैक्सट आ जाओ ओपोजिट मीनिंग। ओपोजिट मीनिंग दसना है जी, किहदा दसना है? क्वांट या एंटोनियम, एंटोनियम भी लिखा आ सकता है, ठीक है। क्वांट अनयूजुअल, ठीक है। होल हार्टेड, स्वीट या ऑर्डनरी, ठीक है जी। क्वांट का मतलब हुंदा है अट्रैक्टिव और अनयूजुअल, कोई भी चीज़ अट्रैक्टिव होवे, अट्रैक्टिव भी कही जा सकती है या फिर अनयूजुअल होवे वो भी कहा जा सकता है। तो क्वांट का की आ जाऊगा अपना? क्वांट का आ जाऊगा जी ऑर्डनरी, ठीक है। क्वांट ऑर्डनरी यह की है जी ओपोजिट, एदा उल्टा। क्लीयर है, समझ आ गया स्टूडेंट्स? आओ जी नैक्सट क्वेश्चन। नैक्सट सोडा जेडे क्वेश्चन हैं जी वो है साइंस के क्वेश्चनस, ठीक है। ये आप अज साइंस के क्वेश्चनस करांगे। करो जी, स्टार्ट करो। की दिता हुआ है? वेलोसिटी इज डिफाइंड एज डैश पर टाइम। वेलोसिटी इज डिफाइंड एज पर टाइम, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, पार, एक्सेलरेशन। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, पावर एंड एक्सेलरेशन की आऊगा जी? वेग नू प्रति समय डैश वजों परिभाषित किया गया है। की आऊगा जी आंसर? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, पावर एंड एक्सेलरेशन। कमेंट सैक्शन दे विच दसते जाओ। वीडियो नू लाइक, शेयर ते कमेंट भी जरूर कर दिया करो स्टूडेंट्स, ताकि सानू पता चलता जाए कि तुहानू समझ आ रही है या नहीं समझ आ रहा, ठीक है। तो इसका आंसर की आ जाऊगा जी? वेलोसिटी इज डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट पर टाइम। की आंसर आ जाऊगा? वेलोसिटी इज डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट पर टाइम। वेग नू प्रति समय विस्थापन वजों परिभाषित किया गया है। किसके वजों? विस्थापन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट आ जाओ। अ बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अ बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन हैज़ अ यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स डैश डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल्स। इन्होंने कहा कि अगर एक चीज़ सीधी लाइन दे विच ट्रैवल कर रही है, ठीक है, उसका यूनिफॉर्म मोशन है, कदों होगा? अगर वो ट्रैवल करूगी डैश डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल दे विच, बराबर या अनइक्वल, ठीक है। एक सीधी रेखा विच चलण वाले शरीर दी एक समान गति हुंदी है। इत्थे कोई कार, स्कूटर, बस कुछ भी आ सकता है, ठीक है। एक सीधी रेखा विच चलण वाले शरीर दी एक समान गति हुंदी है जेकर यह बराबर समय दे अंतरालां विच डैश दूरी दी यात्रा करता है, बराबर या अनइक्वल, ठीक है। कि आंसर क्या होगा जी? आंसर आएगा इक्वल, बराबर, ठीक है। अ बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन हैज़ अ यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स इन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल्स। क्लियर है? क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट देखो, व्हाट डज द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव, ठीक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ दी स्लोप की हुंदी है जी, ठीक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ की आऊगा जी? स्पीड आ जाऊगा। स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, गति, फिर वेलोसिटी, प्रवेग ते विस्थापन, ठीक है। आपां पता ही है एस डी टी, ठीक है। तो जी अपनी ये होएगी डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप वो की होगी जी? स्पीड होएगी। क्लीयर है स्टूडेंट्स? तो अगर वेलोसिटी टाइम आ जाए तो की होगा? तो एक्सेलरेशन होएगा, ठीक है। आ गया, नेक्स्ट ही आ गया जी। चलो, व्हाट डज द स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम? हुण वेलोसिटी ते टाइम, तो आंसर की आ जाऊगा? एक्सेलरेशन, ठीक है। अगर अपना डिस्टेंस ते टाइम आ जाए
डिस्टेंस ते टाइम आ जाए तां की आ जाऊगा जी स्पीड आ जाऊगा, ठीक है। अगर वेलोसिटी टाइम आ जाए तां की आ जाऊगा एक्सेलरेशन। क्लियर है स्टूडेंट्स, किसी को कोई डाउट? चलिए अगे आओ जी नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ अ फ्री फॉलिंग बॉडी। किसी फ्री फॉलिंग बॉडी लई केड़ी गल इन्हां चों सही है? इट मूव्स विद नॉन यूनीफॉर्म मोशन, यह एक नॉन यूनीफॉर्म मोशन दे नाल चलदी है, यदी जीरो वेलोसिटी हुंदी है। इट हैज़ कॉन्सटेंट नॉन जीरो एक्सेलरेशन, यदा कॉन्सटेंट नॉन जीरो एक्सेलरेशन रहिंदा है। इट हैज़ नॉन यूनीफॉर्म एक्सेलरेशन, यदा नॉन यूनीफॉर्म एक्सेलरेशन हुंदा है। हेठ लिखियां विचों किहड़ा एक सुतंत्र शरीर बारे सच है? यह गैर एकसार गति नाल चलदा है, ठीक है। दूजा इसकी जीरो वेग है। तीजा इस विच निरंतर गैर जीरो प्रवेग है। चौथा इस विच गैर यूनीफॉर्म प्रवेग है। की आंसर आऊगा जी? ਇਹਦਾ आंसर आऊगा इट हैज़ कॉन्स्टेंट नॉन जीरो एक्सेलरेशन। की आऊगा जी? इट हैज़ कॉन्स्टेंट नॉन जीरो एक्सेलरेशन। इस विच निरंतर गैर जीरो प्रवेग है, नॉन जीरो प्रवेग है। क्लियर है स्टूडेंट्स, एक सुतंत्र शरीर बारे गल हो रही है, ठीक है। तो अपना आंसर की आऊगा जी? इट हैज़ कॉन्स्टेंट नॉन जीरो एक्सेलरेशन। चलिए अगे। द फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरैक्शन इज नोन एज। ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਜਿਹਦੀ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ? ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ, ਸਕੇਲਰਸ ਕੁਆਂਟਿਟੀ, ਦੋਨੋਂ, ਬੋਥ ਏ ਬੀ, ਨਾਈਦਰ ਏ ਔਰ ਬੀ। ਨਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ ਜੀ? ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਭੌਤਿਕ ਮਾਤਰਾ ਜਿਸ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਦੋਵੇਂ ਹਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ? ਵੈਕਟਰ, ਸਕੇਲਰ, ਦੋਵੇਂ ਏ ਅਤੇ ਬੀ, ना ही ए ना ही बी। दा आंसर की आऊगा स्टूडेंट्स? ਇਹਦਾ आंसर आऊगा जी वैक्टर्स। वैक्टर की किया जाता है? ਉਹ ਕੁਆਂਟਿਟੀ, ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਜਿਹਦੀ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਵੀ ਹੋਵੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ? ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਵੈਕਟਰਸ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ। द path length traveled by a body in a given time interval is known as। एक पाथ लेंथ कोई बॉडी द्वारा ट्रैवल की गई दिते हुए समय दे विच उन्होंने की कहा जाऊगा? डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन या फिर मूवमेंट। एक दिते समय के अंतराल विच एक शरीर द्वारा यात्रा की मार्ग की लंबाई नूं डैश किया जाता है। की कहा जाता है स्टूडेंट्स? कहा जाता है जी डिस्टेंस, दूरी, ठीक है। इन्होंने की पूछा सी? एक दिते समय के अंतराल विच एक शरीर द्वारा यात्रा की मार्ग की लंबाई नूं डैश कहा जाता है। दूरी कहा जाता है, गति कहा जाता है, प्रवेग कहा जाता है या फिर पल कहा जाता है। तो की कहा जाता है? दूरी, ठीक है जी। नैक्सट आ जाओ। इन्होंने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस इज ट्रू एंड पॉसिबल। केड़ियां सिचुएशंस सही हैं ते हो सकता है, पॉसिबल हैगी है। इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज जीरो दैन द एक्सेलरेशन कैन बी नॉन जीरो। अगर वेलोसिटी जीरो है तो एक्सेलरेशन नॉन जीरो हो सकता है, ठीक है। दूजा इफ अ बॉडी मूविंग एट कॉन्सटेंट वेलोसिटी, अगर एक बॉडी कॉन्सटेंट वेलोसिटी ते काम कर रही है, जा रही है, कैन हैव एक्सेलरेशन, तो उसका एक्सेलरेशन भी हो सकता है, ठीक है। तीजा द मैग्नीट्यूड ऑफ अ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल इन अ सर्कुलर मोशन। ਜਿਹੜਾ मैग्नीट्यूड होएगा कादा डिस्टेंस ते डिस्प्लेसमेंट का वह सर्कुलर मोशन दे विच की होगा? इक्वल होगा। ऑल ऑफ द अबव, सारे ही सही हैं, ठीक है। हेठ लिखियां स्थितियां विचों केड़ी सही अते संभव हन? जेकर किसी शरीर का वेग जीरो है तो प्रवेग गैर जीरो हो सकता है, ठीक है।
ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਵੇਗ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੋਲ ਮੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਪਨ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਰਾਜੇ? ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਇਫ ਦ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਅ ਬੋਡੀ ਇਜ਼ 0 ਦੈਨ ਦ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕੈਨ ਬੀ ਨੋਨ 0। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵੇਗ 0 ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵੇਗ ਗੈਰ 0 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵੇਗ 0 ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵੇਗ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਗੈਰ 0 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ? समझ आ रही है सारिਆਂ ਨੂੰ? बिल्कुल सिंपल चीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन समटाइम बी 0 फॉर अ मूविंग बॉडी? इन्हां विचों चलदे शरीर लई हेठ लिखियां विचों किहड़ा 0 हो सकदा है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी 0 फॉर अ मूविंग बॉडी? चलदे शरीर ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ 0 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਐਵਰੇਜ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਟਰੈਵਲਡ, ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ, ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ। ਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। औसत गति, दूरी की यात्रा की, औसत गति या फिर विस्थापन। सिर्फ पहला ते दूजा। डिस्टेंस तो 0 हो ही नहीं सकता, स्पीड भी 0 नहीं हो सकती। ठीक है, या फिर कला डिसप्लेसमेंट। लेकिन 0 की हो सकता है? वेलोसिटी ते डिसप्लेसमेंट। ठीक है, ये दोनों 0 हो सकते हैं। ठीक है, औसत गति ते विस्थापन। ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन समटाइम बी 0 फॉर अ मूविंग बॉडी? तो आंसर की आ जाऊगा एवरेज वेलोसिटी एंड डिसप्लेसमेंट। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए अगे आओ जी। हुण इन्हां ने पूछे अपने तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली नॉट अ केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? Which of the following is most likely not a case of uniform circular motion? इन्हां चों किहड़ा केस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन दा नहीं बनूगा? मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, सूरज दुआले धरती की गति, मोशन ऑफ अ टॉय ट्रेन ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, एक गोलाकार ट्रैक ते एक खिडौना रेल गड्डी की गति, मोशन ऑफ अ रेसिंग कार ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, एक सर्कुलर ट्रैक उत्ते एक रेसिंग कार की गति, मोशन ऑफ आर हैंड ऑन द डायल ऑफ अ क्लॉक, घड़ी के डायल ते घंटिया के हथ की गति। तो आंसर की आ जाऊगा राजे? मोशन ऑफ अ रेसिंग कार ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। की आ जाऊगा जी? एक सर्कुलर ट्रैक ते एक रेसिंग की गति, एक सर्कुलर ट्रैक उत्ते एक रेसिंग कार की गति सोडा आंसर हो जाऊगा। क्लीयर है? समझ आ गया स्टूडेंट्स? अगर किसी को कोई भी डाउट होंगे तो प्लीज़ कमेंट सैक्शन दे विच कमेंट कर दिया करो। ठीक है, वीडियो नू लाइक ते शेयर भी ज़रूर करिया करो स्टूडेंट्स, ताकि सानू पता चलता रहे कि किन्ने स्टूडेंट्स देख रहे हैं, कितना समझ आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपां नैक्सट क्लास दे विच।